So, hi guys. As you probably all know, that I'm in the States for a wedding, and I've been going around all the places where I spent a major portion of my life. I'm in Austin, a city I call my second home. And today, Rizwan Bhai, he's joining me. He's a good old friend. He was my senior at engineering university, and I would consider him a mentor. And he is an electrical engineer from, I think, Kentucky University. And he's now a very well established entrepreneur and author of several best selling books on self. So um, I find him very inspirational. So many pointers that he gives me on improving my productivity, my relationships, interpersonal development. I find them really useful, and I thought it'd be a good idea that we go online live with him so he can share his experiences and talk a little bit about his book. So, Rizwan bhai, go ahead. Hello, my name is Rizwan Shuja, and I'm an inspirational, motivational speaker and an author. Uh, Thank you very much, Irfan, for giving me the opportunity to talk on your forum. I really appreciate that. Um, Irfan has asked me to talk about one of my books. It's called Cycle of Fulfillment. The book is about what success is. Basically, my brother, Dr. Imran, is a co-author. We are together in this. I have read over 100 books, attended many seminars, and attended workshops in the science of success and personal development. Initially, the goal was to increase my business skills so I can make more money. But during this journey, I saw that a lot of speakers, authors, they said happiness is more important, peace is more important, Contentment health, is very important. contentment is more important, uh, fitness is more important, health is more important, relationship with people and God is more important. Some said your knowledge, your skills, your education is more important. Some said your contacts, reports, networking is more important. Some said money, financial planning is more important. So that kept me thinking what success really is. It's a vast field. So असल में सक्सेस है क्या, और अगर ये सारी चीजें सक्सेस हैं Yeah, तो पहले कौन सी आती है और बाद में कौन सी आती है, and how they are interrelated. ठीक है, So बिल्कुल. we came up with this model. मेरे पास बुक भी है अभी, उर्दू का वर्जन है मेरे पास. That's all right. बल्कि हम उर्दू में ही बात करते हैं हाँ, ताकि उर्दू में बात करते हैं. बेसिकली सक्सेस इज अचीविंग 5 गोल्स. जिस तरह ये इट्स अ साइकिल ऑफ फुलफिलमेंट. जो पहला गोल है वो मेंटल इमोशनल फुलफिलमेंट है, यानी जज्बाती और जहनी सुकून. दूसरे नंबर पे है जिस्मानी सेहत. तीसरे नंबर पे रिश्तों में अल्लाह के साथ और लोगों के साथ. ठीक है, जो कि असल में एक ही चीज है. रिलेशनशिप विद पीपल एंड गॉड इज एसेंशियली द सेम थिंग. अच्छा, उसके बाद आता है पेशेवराना, यानी योर करियर, इट कुड बी योर जॉब और बिजनेस. और आखिर में है माली, यानी फाइनेंशियल वेल्थ. ठीक है. अच्छा, अब मेंटल इमोशनल फुलफिलमेंट हमने नंबर 1 पे क्यों रखी, और वो है क्या? असल में मेंटल इमोशनल फुलफिलमेंट का मतलब है नॉट टू एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशंस, यानी मनफी जज्बात अपने अंदर, जैसे नफरत है, गुस्सा है, हसद है. नहीं, बल्कि इंग्लिश में ही रखें because we relate, greed, resentment, anger. Yeah. So basically, mental emotional fulfillment means not to experience negative emotions like hate, jealousy, anger, resentment, Insecurity. vengeance, worry, fear, greed, ego, and be able to cultivate positive emotions like love, compassion, empathy, sympathy, gratitude, the need of giving, etc. जिस चीज का मैं पैकर हूँ, which I embody. Great. ठीक है. असल में जो हमारा ब्रेन है ना, ये अल्लाह की तरफ से ही इस तरह प्रोग्राम हुआ है कि वी ट्राई आवर बेस्ट टू गेट गुड इमोशंस एंड प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम पेनफुल इमोशंस लाइक फियर, फेलियर, रिजेक्शन, ह्यूमिलिएशन. तो अगर मैं लेट्स से फर्ज करें कि BMW भी लेने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसका मकसद
अच्छे इमोशंस लेना है, टू चेंज द इमोशनल कंटेंट ऑफ माय लाइफ एंड चेंज द वे आई फील। ठीक है, कंफर्ट स्टाइल वो जरूर। जो स्टाइल है ना, यानी वो नीड ऑफ अप्रूवल, वो भी तो इमोशंस ही है ना कि हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू। या ठीक है ना, तो टू मेक योर सेल्फ फील सक्सेसफुल, अकम्प्लिश्ड, रिस्पेक्टेड, people notice you, look at you, all those things are emotions, right? बिल्कुल They ठीक। finally come down to emotions. या So असल में अगर हमारा गोल ये है, तो why not make it our mental emotional fulfillment our direct goal, instead of going through BMW, alcohol, and showing off your success, all those things, right? So और दूसरी बात कि अगर हम पहला गोल यानी मेंटल इमोशनल फुलफिलमेंट अचीव कर लेते हैं अच्छे गुड मेंटल इमोशनल स्टेट में, तो हमारी हेल्थ को और फिटनेस को भी उससे फायदा होगा। जैसे कि आपको पता है कि हेट से, रिजेंटमेंट से, वरी से, फियर से, स्ट्रेस से, इट अफेक्ट्स योर हेल्थ डायरेक्टली, राइट? बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। और अगर आप गुड मेंटल इमोशनल स्टेट में, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस है, जैसे कंपैशन है, एम्पैथी है, गिविंग है, काइंडनेस है, और नेगेटिव इमोशन हेट नहीं है, जेलसी नहीं, तो आपका जो थर्ड गोल है यानी रिलेशनशिप, यानी रिश्ते, लोगों से रिलेशनशिप विद पीपल, वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव इंप्रूव होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, और रिलेशनशिप विद गॉड वो भी इंप्रूव होगा। रिलेशनशिप विद पीपल एंड गॉड इज एक ही चीज है वो, क्योंकि अल्लाह के साथ जो कनेक्शन है, स्पिरिचुअलिटी है, रिलेशन है। Isn't it difficult when some people try to play God? Then things get complicated, right? या तो अच्छा, अब अगर आपके मॉरल्स अच्छे हैं, वैल्यूज अच्छे हैं, और आप अच्छे गुड मेंटल इमोशनल स्टेट में हैं, और लोग आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, तो आपका फोकस, प्रोडक्टिविटी भी हाई होगा। बिल्कुल ठीक है ठीक ना। है। अगर आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी हाई होगा, तो आप बिजनेस में और जॉब में अपने थ्राइव करेंगे और प्रोग्रेस करेंगे। और अगर बिजनेस और जॉब में आप थ्राइव और प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो मनी कम्स विद इट। तो चौथा गोल जो था वो बिजनेस या करियर था, और ठीक है। पांचवा गोल फाइनेंसिस था। तो ये बेसिकली सारे इंटररिलेटेड है। एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, एंड दैट्स हाउ इट हेल्प्स। अब बेसिकली फुलफिलमेंट है क्या? लोग थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं प्लेजर और फुलफिलमेंट को। ठीक है। बेसिकली प्लेजर से और फुलफिलमेंट से दोनों से हैप्पीनेस आ सकती है, लेकिन प्लेजर से जो है वो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट लिव्ड है, बिल्कुल। और फुलफिलमेंट से लॉन्ग टर्म है। अब हो सकता है कि मैं किसी को थप्पड़ मार के मुझे हैप्पीनेस मिल जाए, या ड्रग्स लेके हैप्पीनेस मिल जाए, या शराब पी के मिल जाए, या शो मार के किसी को नीचा दिखा के मिल जाए, बिल्कुल लेकिन वो ऐसे। शॉर्ट लिव्ड है। यानी एनीथिंग दैट इज नॉट गुड फॉर यू और अदर्स इन द लॉन्ग टर्म कैन नॉट बी फुलफिलमेंट। ठीक है। और फुलफिलमेंट आपकी आती है ग्रोथ और प्रोग्रेस से, और गिविंग से, इनर पीस से, इनर पीस से। स्पिरिचुअलिटी जो मतलब जो आपका फुलफिलमेंट आती है, फुलफिलमेंट जो है वो सोल की है, और जो प्लेयर है वो बॉडी का है, वो कार्नल है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए, अब जैसे हमने पहले बात की थी कि अगर हम एक एग्जांपल लें दो औरतों की, जो कि मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ, यानी सास और बहू हैं, जो एक दूसरे से नफरत करती हैं, लड़ती हैं, और एक दूसरे का बुरा चाहती हैं। वो ये बुक पढ़ने के बाद बोल सकती हैं कि तुम्हारी बात मान ली कि अगर हम अपने नेगेटिव इमोशंस पे कंट्रोल कर लें, ठीक है, तो उससे हमें बहुत फायदा होगा। जितने भी गोल्स हैं, यानी हैप्पीनेस है, हेल्थ है, पीस है, रिलेशनशिप विद पीपल है, दीन है, रिलीजन है, फोकस है, प्रोडक्टिविटी है, बिजनेस है, या जॉब है, और फाइनेंस, सब पे फायदा होगा। लेकिन सिर्फ तुम्हारे ये बोल देने से कि ठीक हो जाओ, अपने नेगेटिव इमोशंस कम कर लो, तो उससे हम कम थोड़ी कर लेंगे, खुद नहीं। तो नहीं होंगे ना। तो ये कैसे होंगे? तो उस पे मैं एक और बुक हम लिख रहे हैं, जिसका नाम है मेंटल इमोशनल फुलफिलमेंट, अ गाइड टू स्पिरिचुअलिटी, राइट? एंड जिसका सब टाइटल है हाउ टू टेम योर नेगेटिव इमोशंस। ठीक है। ठीक है ना। अब That's उसके the key. बिल्कुल सही बात है। क्या, Like I get triggered off very easily. यस, तो मुझे अपने इस फ्लॉ का पता है। तो आई थिंक अपने फ्लॉज का पता होना is the first step in rectifying those issues. यस, यस, एक्चुअली यस, ये जो अभी हम टूल्स, टेक्निक्स और मेथड्स की बात कर रहे हैं ना, उसमें पहली चीज ही यही है, कॉन्शियस अवेयरनेस Yes. एंड प्रॉक्सिमिटी। ये पहला टूल है। कॉन्शियस अवेयरनेस का मतलब है कि
आपको ये रियलाइज आपने कर लिया है कि आपके जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो They are उससे bringing आपको you down and everybody else around you. या उससे आपको नुकसान हो रहा है, ठीक है ना, और आपके अंदर एक डिजायर पैदा हो गई है कि आपने ठीक होना है, ठीक है। ठीक है, अगर आपको पता ही नहीं है और मैं इस डिजायर स्टेज के ऊपर हूँ, आई एम एट दिस स्टेज। या तो वो आप ठीक होना शुरू हो रहे हैं, राइट। तो या उसी से 10% का फर्क पड़ सकता है। अच्छा, चलो, दैट्स ग्रेट। या आई थिंक नादिया तो कहेगी कि नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, दैट मैन इज बियॉन्ड हेल्प। अच्छा, तो अच्छा, अब इसको समझने के लिए कि हम किस स्टेट में हैं अपनी ईगो डेवलपमेंट की, इसको एक्सप्लेन किया जा सकता। हमारे पास कितना टाइम है बाय द वे बात करने आपके लिए अनलिमिटेड टाइम है, बिकॉज व्हाट वी आर सेइंग इज very, very, very vital. I think it's I mean, no matter how much money you have, but if you don't have that contentment and if you're not at peace with yourself and for people around you, के? या everything is meaningless. मीनिंगलेस, या So, मैंने कहीं पढ़ा था कि when you're dying, the thought आपके जहन में ये नहीं आएगा, यार वो मेरी वो शूट रह गई, या मेरी वो मिलियन रह गया, या मेरा वो घर रह गया। या It would रिलेशनशिप, be, कि मैंने I did not do justice to people around me, या और मैंने relationship building नहीं की, and maybe I had spent more time. So I realized that I realized my false one word, no negativity, Hira Khatak, no negativity, only positive emotions. So that's the only thing I have to say. अच्छा, देखिए ये कभी नहीं हो सकता कि आपको नेगेटिव इमोशंस आए ना, ठीक है ना, वो तो नहीं हो सकता। आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, टेम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही खत्म कभी भी हो जाए, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो बिल्कुल सही है। हाउ टू टेम दैट, उस पर हम बात कर सकते हैं। बेसिकली जो क्या कहते हैं, हम बात करेंगे टोनी रॉबिन्स के एक 6 ह्यूमन नीड्स हैं, ठीक है ना, उसको समझना। और फिर एक 9 स्टेजेस ऑफ ईगो डेवलपमेंट है कि हमारी किस तरह ईगो और पर्सनैलिटी इवॉल्व होती है और हमारे अंदर किस तरह स्पिरिचुअलिटी और रूहानियत आती है और आ सकती है। तो पहले हम बात करते हैं 6 स्टेजेस, सॉरी 6 human बेसिक needs. ह्यूमन नीड्स। अच्छा, इनको समझने से हमें ये समझ आता है कि जो हम कर रहे हैं ना, वो हम कर क्यों रहे हैं, उसके पीछे हमारा मोटिव क्या है और रीजन क्या है, ठीक है ना। अब असल में जो इमोशंस है ना, वो हमें ड्राइव करते हैं जी, आपके इस इमोशनल स्टेट में, राइट। बिल्कुल ठीक अच्छा, है। अब हमारे जो डिसीजंस हैं या हमारी जजमेंट्स हैं या जो हमारी सिलेक्शन है, या वो हमारी डेस्टिनी है, राइट। हाँ, तो they chart our paths, हाँ, in या this. तो आपकी जो इमोशंस हैं या इमोशनल स्टेट है, वो आपके डिसीजंस और सिलेक्शंस पे बहुत अफेक्ट करते हैं, Absolutely. ठीक है। अच्छा, अब जो हम नीड्स की बात कर रहे हैं, ये इमोशनल नीड्स हैं, ये कोई फिजिकल नीड्स नहीं है, यानी कि जैसे फूड है, वाटर है, ऑक्सीजन है, शेल्टर है, ये वो नहीं है, ये इमोशनल नीड्स हैं। तो पहले नंबर पे आता है सिक्योरिटी, श्योरिटी और सर्टेनिटी, यानी कि मैं सिक्योर और श्योर और सर्टन होना चाहता हूँ कि कि मुझे रात मुझे खाना मिलेगा, खाना मिल मेरे जाएगा, साथ मेरी छत कोई होगी। मुझे छत रहेगी, कोई मुझे मार के नहीं चला जाएगा, हाँ, और मैं मिनिमम स्टैंडर्ड जो है लाइफ का वो अचीव कर लूंगा। बिल्कुल। अच्छा, उसके लिए आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, जॉब करते हैं, सारा कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं। तो अब आप एक जगह पे पहुंच जाते हैं कि आपको पता है कि यार मैं 7 बजे उठूंगा, 8 बजे काम पे जाऊंगा, 12 बजे लंच करूंगा, 5, 6, 7 बजे घर आऊंगा, टीवी देखूंगा और बच्चों के साथ बात करूंगा और सो जाऊंगा। अगले दिन फिर वही होगा, फिर अगले दिन वही होगा, अगले हफ्ते भी वही होगा, अगले। तो ये बहुत ज्यादा जब सर्टेनिटी आ जाती है ना कि आपको पता है क्या होने वाला है बार बार, तो आपके अंदर एक नेक्स्ट नीड अराइव होती है जो हाँ, कि है, जो वैरायटी की है, थ्रिल, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ वैरायटी लाइफ, एज या दे से। अनसर्टेनिटी, राइट। अब मिसाल के तौर पे अब क्रिकेट का मैच हम देख रहे हैं, राइट। क्रिकेट के मैच में हर बॉल पे क्या होने वाला, आउट भी हो सकता है, छक्का भी लग सकता है, मिस भी हो सकती है, कौन जीतेगा, कौन सी टीम हारेगी, वो जो अनसर्टेनिटी है ना, वो जो थ्रिल और वो एक्साइटमेंट है, वो है सेकंड नीड, यानी अच्छा, अनसर्ट और एक क्वेश्चन है स्पार्की फ्रेंडी ने पूछा है, हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल इफ दे आर रियली क्लोज टू यू एंड इफ यू नो what they are doing and why they are doing it. Sorry, मैंने कहा we need to engage people as well instead कि Yes, हम। yes, definitely. Very good question. And I want to give an answer to that. क्योंकि if they are very close to you, देखें, पहली तो ये बात है कि your inner world, नहीं, आई your थिंक inner इसका world, आंसर वही है कि यू मस्ट रियलाइज, जो आपने मुझे कल समझाया है,
कि you should not judge people and you should realize the fact कि what they are doing is जो भी ड्रामा कर रहे हैं that is they are doing it based on the जो उनका जर्नी है और whatever trauma और देखिए वो तो forgive people है, right? How to forgive people and how to not judge them, right? लेकिन सबसे पहले ये है कि your inner world जो आपके अंदर है ना, वो ही आपको बाहर मिलने वाला है. Your inner world creates your outer world. ठीक है ना? अगर आपके अंदर हेट है, जेलसी है, एंगर है, वेंजेंस है, तो आपको मिलने वही वाला है. ठीक है ना? अगर आपके अंदर लव है, काइंडनेस है, गिविंग है, फॉरगिवनेस है, तो मिलने आपको वही वाला है. ठीक है ना? अब मसला ये है कि हमें लगता है कि हम सही हैं, उस दूसरों को लगता है वो दूसरे ठीक है. किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, किसी भी रिलेशनशिप में जब बंदा जाता है ना, चाहे वो बीवी के साथ हो, भाई के साथ हो, दोस्त के साथ हो, कोवर्कर के साथ हो, कंपनी के साथ हो, कंपनी तो शख्स नहीं है उसके, हम ये देखते हैं हमें क्या मिल रहा है, राइट? सेल्फिश. तो जब आप रिसीविंग एंड पे आ जाते हो ना, तो सामने वाला भी रिसीविंग एंड पे आ जाता है. फिर कॉन्फ्लिक्ट आता है, सेल्फिश, फिर लड़ाई होती है. अगर आप गिविंग एंड पे हो ना, तो रिसीविंग हमेशा ज्यादा होगी. अगर आप बहुत पॉजिटिव हो ना, तो सामने वाला बंदा भी पॉजिटिव एक्ट करना शुरू कर देगा. बिल्कुल सही बात है, आई एग्री. तो आपने बोला है ना कि हाउ नॉट टू जज पीपल, हाउ टू फॉरगिव पीपल. उसके लिए जो बेस्ट तरीका है कि यू ऑलवेज रिमेंबर कि पीपल डू देयर बेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल इमोशनल स्टेट, देयर बायोकेमिकल स्टेट, and according to their education, their experiences, the environment they live in. So अगर कोई बंदा, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि एक बंदा, यार मेरा नौकर चोरी कर रहा है, मैंने उसको पकड़ लिया है, राइट? तो मैं ये सोचूंगा यार कि पता नहीं बेचारे के किन हालात में रहा, इसके पूरे मोहल्ले में सारे चोर उचक्के थे, भूखा भी रहा. अगर मैं इन हालात में होता ना, तो मैं भी शायद बिल्कुल आज चोरी ही कर रहा होता इसकी जगह पे. ठीक है ना? एग्जैक्टली उस स्टेज पे होता. क्योंकि नादिया, ये आई होप यू आर राइटिंग डाउन, ये सारे पॉइंटर्स नोट करो नादिया प्लीज. तो जब आप ऐसे होता है ना, तो उसमें ये कि इट्स इजी टू फॉरगिव. लेकिन मिसाल के तौर पे अगर आपका नौकर चोर है, तो आप क्या उसको चोरी करने देंगे? लेकिन आप उसको निकाल जरूर देंगे, क्योंकि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है. ठीक है ना? लेकिन आप उसको जज नहीं करेंगे. ठीक है ना? जब आप जज नहीं करते ना, देखें आपके जो अंदर का मैल अगर खत्म नहीं होगा ना, जैसे बाबा बुल्ले शाह ने भी इस पे बहुत स्ट्रेस दिया कि अंदर का जो मैल है वो खत्म करोगे तो चीजें ठीक होंगी. अब इजीएस्ट थिंग है ना, वो ये है कि पहले तो आप ये याद रखें कि अ पर्सन डज नॉट डाई फ्रॉम अ स्नेक बाइट. ठीक है ना? अगर मिसाल के तौर पे इट डाइज फ्रॉम द वेनम, जो कि इसके अंदर जहर होता है. अगर फर्ज करें सांप में वेनम नहीं है, जहर नहीं है, तो वो काट भी लेगा मुझे, तो एक हल्का सा स्क्रैच है, कुछ भी नहीं है. ठीक है ना? अ पर्सन डज नॉट डाई फ्रॉम अ स्नेक बाइट बट फ्रॉम द वेनम, यानी जहर से, वेनम ऑफ हेट, जेलसी, एंगर, रिजेंटमेंट, वेंजेंस, यू नो. तो अगर आप किसी को माफ कर रहे हैं ना, उसको फॉरगिव कर रहे हैं, तो आप अपने आप को ही माफ कर रहे हैं, क्योंकि आप नेगेटिव स्टेट में हैं. तो अपनी देखो, हमारा गोल, जैसे हमने बात की है, हमारा गोल क्या है लाइफ का? टू एक्सपीरियंस गुड इमोशंस एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम पेनफुल इमोशंस. अगर हम किसी को हेट कर रहे हैं, हम किसी का बुरा चाह रहे हैं, तो हमारा ही फेलियर है. उसी से हम बात कर चुके हैं, हमारी हेल्थ पे भी इफेक्ट होगा, रिलेशनशिप पे भी होगा, दीन पे भी होगा. दीन भी मना करता है, जब रिलेशनशिप खराब होंगे, फोकस खराब. आपकी लड़ाई हुई है अपनी बीवी से, मैं आपको बुक दूंगा, पढ़ें, कल एग्जाम है, आप फोकस ही नहीं कर सकेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी नीचे चली जाएगी. तो आपके करियर पे भी इफेक्ट होगा, बिजनेस पे भी इफेक्ट होगा. बिजनेस और करियर पे होगा तो फाइनेंसेस पे होगा. तो दूसरे को फॉरगिव ना करके, बुरा चाह के, आप जो है अपना ही नुकसान कर. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ताइफ वालों को भी माफ कर दिया था. तो माफ कर देना पैगंबरों का शेवा है. आप अल्लाह पे छोड़ दें. हेलो जीशान 214 जी, रिजवान भाई, लेट्स गो बैक. अच्छा, इससे एक और मैं अच्छी बात बताता हूँ. माफ करने से ज्यादा अच्छी बात पता है क्या? देखें, पहले तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ. जो ईगो है ना, यानी अना है, योर ईगो वांट्स यू टू बी इन टर्मोइल. बिल्कुल. योर हायर सेल्फ वांट्स यू टू बी एट पीस. हायर सेल्फ है ऑपोजिट ईगो, जो आपको अल्लाह के करीब लेके जाता है. ठीक है? अच्छा, जब आप कहते हैं ना कि इरफान भाई, जैसे मिसाल के तौर पे आपकी और आपकी बीवी की लड़ाई हुई, ठीक है, आप बोलते हो कि मैंने उसको माफ कर दिया, राइट?
ठीक है। ये भी एक ईगो ड्रिवन लीग है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये भी एक ईगो ड्रिवन है। हाँ ये तो यानी है। कि आप ये बोल रहे हो कि गलत तो तुम ही थी, लेकिन मैंने मैं माफ किया, मैं बड़ा आदमी हूँ, राइट? तो मान के बंदा मर जाए, माफ भी ना करे नहीं, क्या? पहले सॉरी कर दे कि यार मैं गलत था, ठीक है यार। ओके। समझ रहे हो आप? ये उससे आगे की स्टेज है। ठीक है। क्योंकि यार हर बंदे की अपनी रियलिटी है। जब भी किसी की लड़ाई होती है, आप सुलह कराने जाते हो, जब एक ही बात सुनते हो लगता है कि वो सही है, दूसरे की सुनते हो कि वो लगता है वो सही है, दूसरा गलत लगता है तब। तो बेसिकली बंदा ब्रह्मचारी बन जाए, साधु बन जाए और दुनिया से बेनियाज हो जाए। ऐसा इन हो सारी तो नहीं बातों सकता, का ऐसा होने की कोशिश करना शुरू कर सकता है। अच्छा अगर ओके। मैं आप आज डिसाइड करते हो कि मैंने फिटनेस करनी है, आर्नल्ड जैसा बना, आप बन तो नहीं सकते। हाँ कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट तो आएगी, हाँ ठीक है। कुछ ना कुछ उस डायरेक्शन में तो आप आओगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है ना? तो और हम बात क्या कर रहे थे? हाँ, नीड्स की। देखें, पहली है सिक्योरिटी, श्योरिटी और सर्टेनिटी, वो तो हो गई बात। जी। ठीक है, दूसरी हमने बात की अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी और वैरायटी की, वो भी हो गई क्रिकेट मैच। लेकिन अच्छा हाँ, उसको हम पूरा कर रहे थे। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक मैच खत्म हुआ है, आप उसी वक्त उसको दोबारा देखोगे? नहीं देखूंगा मैं। नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि क्या होने वाला है, कौन जीतने वाला है, आउट होने वाला है, रन बनने वाले। बिल्कुल। तो आपकी जो थ्रिल एक्साइटमेंट खत्म होगी। लेकिन या कभी ना कभी आप उसको साल 2 साल बाद कोई ना कोई मैच आप वो देखते हो जो आप पहले देख चुके हो, राइट? री लेकिन बिल्कुल टू रीलिव लेकिन दोस पॉजिटिव फीलिंग्स एंड सेम थिंग, मूवी भी आप कभी दोबारा देखते हो, लेकिन वो मूवी आपकी फेवरेट मूवी होगी, या उस मैच में आपकी फेवरेट टीम जीती होगी, क्योंकि आप सर्टन हो के अच्छा फील होने वाला है। एंड एट द सेम टाइम यू आर होपिंग कि आपको इतना भूल गया हुआ है कि वैरायटी का भी मजा आने वाला है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? तीसरी नीड है नीड ऑफ अप्रूवल, जो या फेसबुक नीड पे ऑफ, लाइक्स हैं, फॉलोअर्स हैं, कमेंट्स हैं। हाँ, नीड ऑफ इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस, राइट? कि मैं बड़ी चीज हूँ, मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से बड़ी है, मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है, आई एम बेटर लुकिंग देन यू, या आई एम मोर रिलीजियस देन यू। ये भी एक तरीका है कि एक बंदा कहता है यार आई एम नॉट इनटू दिस वर्ल्डली क्रैप, आई एम अ मैन ऑफ गॉड। वो अब उसका तरीका है अप्रूवल लेने का, राइट? अच्छा, चौथी नीड है अनलेस के वो उसकी डीलिंग्स में शो करता है, और अगर वो वाकई ही इज अ मैन ऑफ गॉड, देन वो इस बात को बार बार दिखाएगा नहीं, बताएगा नहीं। अच्छा, अब चौथी नीड है लव, कनेक्शन और बॉन्डिंग की। ठीक है, यानी ह्यूमन बींग्स दे वांट टू इंटरेक्ट विद अदर ह्यूमन बींग्स, और दे वांट टू बी वांटेड एंड लव्ड, राइट? तो ये चौथी नीड है। अब ये जो पहली 4 नीड्स है ना, ये नीड्स हैं पर्सनैलिटी की। पांचवी और छठी नीड है सोल की, यानी रूह की, वो है ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। ठीक है। और सिक्स्थ है गिविंग एंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है। ग्रोथ और प्रोग्रेस का मतलब है, यानी इसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि वी कैन नॉट बी हैप्पी अनलेस वी आर ग्रोइंग एंड प्रोग्रेसिंग। या आई एग्री, ग्रोथ, स्टैग्नेंसी जो है ना वो बंदे को मार देती है। या ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फुलफिलमेंट। इफ यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग यू कैन नॉट बी हैप्पी। या ठीक है, अब प्रोग्रेस या ग्रोथ आपकी एजुकेशन में हो सकती है, आपके जॉब में हो सकती है, बिजनेस में हो सकती है, फाइनेंसेस में हो सकती आप सिद्धार्थ सेज हाय रिजवान भाई। है। हे, हाउ यू डूइंग? ठीक है जी, चलें, कैरी ऑन कैरी ऑन। तो आपकी फिटनेस पे हो सकती है, आपके रिलेशनशिप में हो सकती है, आपके स्पिरिचुअलिटी में हो सकती है। तो ठीक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ही हो गई। अच्छा, अब ठीक। अक्सर लोग कहेंगे कि यार ये तो नीड हर एक में होती है, लेकिन ये नीड हर एक में नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, और बनना आप इसलिए चाहते हैं, या इंजीनियर बनना चाहते हैं इसलिए चाहते हैं कि यार उससे मैं पैसे कमा सकूंगा, अपनी सिक्योरिटी, सर्टेनिटी, लव, कनेक्शन, इंपॉर्टेंस सीखने, तो आपका गोल अभी भी जो है ना पहली 4 नीडों को पूरा करना है। जो ठीक रियल ग्रोथ और प्रोग्रेस होती है कि अगर आपके अंदर डिजायर इंस्टिल हो गई है नॉलेज की और लर्निंग की, हाँ, राइट, टू वो कन्वर्ट ग्रोथ आइडियाज। और प्रॉस्पेरिटी है। वरना अगर आप सक्सीड करना चाह रहे हैं तो आप बेसिकली उन्हीं चार नीड्स को फर्स्ट को फ्यूल करना चाह रहे राइट, राइट, हैं। राइट। दैट इज नॉट ग्रोथ एंड दैट्स प्रॉस्पेरिटी। नॉट रियल ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। ठीक तो है। अगर अगर आपके अंदर रियल ग्रोथ एंड प्रोग्रेस है, डिजायर है उसकी नॉलेज की और लर्निंग की, तो आपका जो जर्नी होगी ना वो भी प्लेजरेबल होगी। वो आपके लिए पढ़ना और एग्जाम के करीब आगे कोई स्ट्रेस और वरी और वो नहीं होगी, राइट? परेशानी नहीं होगी आपके लिए। ठीक जर्नी भी प्लेजरेबल होगी, जॉब भी प्लेजरेबल होगी। ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब पांचवी नीड है गिविंग एंड कंट्रीब्यूशन। सॉरी, नहीं, छठी ये नीड है, छठी नीड है। छठी नीड है गिविंग एंड कंट्रीब्यूशन, गिविंग बियॉन्ड योर ओन सेल्फ। अब ये गिविंग पैसों से भी हो सकती है, टाइम से भी हो सकती है, आपकी नॉलेज से भी हो सकती है, आपकी एफर्ट से भी हो सकती है। तो इवन अगर किसी को आप अच्छा महसूस करा रहे हैं, मेकिंग समवन फील लव्ड,
मेकिंग समवन फील रिस्पेक्टेड इज ऑल्सो गिविंग. अगर आप कुछ भी गिव नहीं कर सकते तो किसी का सिर्फ अच्छा चाह रहे हैं ना, वो वो भी भी सब. गिविंग है. हाँ. मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, तो हम्म. आप दूसरे लोगों का भी ये चाह सकते हैं, करें कुछ नहीं, लेकिन अगर हाँ. आप चाह लें तो वो भी गिविंग है. उससे भी एक अच्छी मेंटल इमोशनल स्टेट होती है जिससे सारे गोल्स पे फायदा होता है. लेकिन a wise man said कि a part of me dies whenever one of my friends succeeds. ठीक है, आगे. तो ठीक है, कैरी. ये आपकी 6 नीड्स होगी, राइट. ठीक है, अब रिपीट कर दें दोबारा. सर्टेन. नंबर 1 सिक्योरिटी, श्योरिटी और सर्टेनिटी 1. नंबर 2 इज वैरायटी और अनसर्टेनिटी. नंबर 3, yeah. Number 3 is importance and significance. Number 4 is love, connection, bonding. अच्छा, 5th is growth and progress. 6th is giving and contribution. ठीक है. अच्छा, अब ये होगी. अब हम बात करते हैं 9 stages of ego development कि हम किस तरह evolve करते हैं. ठीक है. How do we evolve? And उसमें ये एक साइकोलॉजिस्ट है, प्रोफेसर, उन्होंने ये पेपर लिखा था 9 स्टेजेस ऑफ ईगो डेवलपमेंट. उसको मैंने अपने तरीके से स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से उसको एक्सप्लेन किया. नंबर 1 है इन्फेंसी. जब बच्चा बिल्कुल पैदा होता है उस वक्त उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो एनवायरनमेंट और उसमें क्या डिफरेंस है. उसको लगता है कि सारे लोगों की जो नीड्स हैं, सॉरी, उसकी जो नीड्स हैं वो सारे लोगों के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी उसके लिए. फिर वो ग्रो करके टॉडलर के फेज में जब आता है, यानी 3 साल से 8, 9, 10 साल की एज तक, उसको उस वक्त रियलाइजेशन होती है कि बाकी लोगों की जो नीड्स है ना वो उनके लिए उसकी नीड्स से पहले हैं. तो अब उसको या तो रोना पड़ेगा या टेम्पर टैंट्रम या थ्रो करना पड़ेगा या सिंपैथी लेनी पड़ेगी, तो ही उसका काम होगा, वरना नहीं होगा. तो और वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट इस है. स्टेज पे रहते हैं कुछ हाँ? लोग, तो सेकंड स्टेज पे ही रहते हैं कि जब तक वो टेंट्रम थ्रो ना करेंगे. ठीक है, आगे चले. अच्छा, फिर उसका क्योंकि पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट है, तो उसके अंदर इनसिक्योरिटीज और फियर्स हाई हैं. बिल्कुल ठीक है. इसीलिए वो मामी मामी करते हुए भागता है, राइट, जब भी उसको कोई थ्रेट फील होती है. तो और वो क्योंकि इनसिक्योरिटीज आई है तो वो काफी सेल्फिश है और सेल्फ सेंटर्ड है. उसको सिर्फ अपने एजेंडा की फिक्र है, बाकी लोगों की नहीं है. बाकी वो पैसे नहीं भी है ना तो उसको चीज चाहिए, खिलौना चाहिए. ठीक. अच्छा, अब तीसरे नंबर पे आता है अपॉर्चुनिस्ट. अपॉर्चुनिस्ट में क्या है कि एज से कोई रिलेशन नहीं, वो 90 साल का भी बंदा हो सकता है. तीसरा है अपॉर्चुनिस्ट. अपॉर्चुनिस्ट तीसरा है. अच्छा, पहला तो हो गया इन्फेंसी, दूसरा हो गया टॉडलर की जो एज है 3 to 10, फिर अपॉर्चुनिस्ट. अपॉर्चुनिस्ट में क्या होता है कि बंदा बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है. ही कैन लाई, चीट, डिसीट, मैनिपुलेट, कंट्रोल पीपल, टू गेट हिज वे. इसमें इस स्टेज पे गिल्ट और शेम कोई चीज नहीं है. अगर कोई लॉ या कोई मॉरल्स को अबाइड भी कर रहा है तो सिर्फ पनिशमेंट की फियर से कर रहा है, राइट. यानी मोस्ट ऑफ पीपल अराउंड अस. मेरा ख्याल है कि मोस्ट तो नहीं मैं कहूँगा, अ लॉट ऑफ देम, लेकिन इसमें बहुत कम पढ़े लिखे लोग, क्रिमिनल्स वगैरह इसमें काफी आते हैं. अच्छा, ओके. ठीक है ना. तो हमारे उसके बाद पॉलिटिशियंस इसी में आएंगे, आई थिंक. हाँ, हमारे पॉलिटिशियंस इसी में हाँ, आएंगे. पॉलिटिकल साइंस में आएंगे. हाँ. अच्छा, उसके बाद आता है कन्फॉर्मिस्ट. कन्फॉर्मिस्ट में क्या होता है कि बंदे की जो अभी तक पहले 3 स्टेजेस में ना उसकी पहली 2 नीड्स जो थी ना, सर्टेनिटी की और अनसर्टेनिटी की हाई थी. अब उसकी नीड जो है ना, क्या कहना चाहिए, लव, कनेक्शन, बॉन्डिंग और इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस की भी स्टार्ट हो गई है. तो अब वो क्या करेगा, या तो कोई चर्च ग्रुप ज्वाइन कर लेगा या मस्जिद ज्वाइन कर लेगा या कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेगा या दूसरों का ग्रुप. तो वहाँ उसकी वो नीड पूरी हो रही है. लेकिन इस केस में अभी उसकी जजमेंट बहुत हाई है और उसको जो उसके ग्रुप के लोग नहीं है ना वो सारे इवल लगते हैं. उनके लिए वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपने ग्रुप के लिए फिर भी वो जैसे व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट कह लें. हाँ, जैसे व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट कह लें. हाँ, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट कह सकते हैं. अच्छा, अब इस स्टेज में मतलब अभी भी उसकी वैल्यूज और मॉरल्स इतनी अच्छी नहीं है. मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा किसी रिलीजियस ग्रुप में है, वो सारे नमाज रोज़ा पढ़ रहा है लेकिन झूठ भी बोल रहा है, बेईमानी भी कर रहा है, धोखा भी दे रहा है और बीवी को भी मारता है, पेरेंट्स के साथ भी अच्छा सलूक नहीं करता, लेकिन वो इबादत पूरी कर रहा है. ये किसी भी रिलीजन में हो सकता है, और कोई भी हो सकता है. अब लेकिन अब आप देखेंगे कि जब जिस तरह ईगो डेवलपमेंट होती है 7वें स्टेज में जाके, जब वो वाकई स्पिरिचुअल होगा, तब उसका अल्लाह से कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा.
जब तक आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस है ना, आपका अल्लाह से कनेक्शन बनना नहीं शुरू हो सकता। और इसमें कोई भी रिलीजन हो सकता है, सिर्फ जरूरी नहीं है, इसमें क्रिश्चियंस भी बहुत हैं और बुद्धिस्ट भी हैं जो स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंचे। तो अब पांचवे पे आके उसको बोलते हैं एक्सपर्ट। एक्सपर्ट में उसकी नॉलेज और एबिलिटी टू डू थिंग्स थोड़ी हाई हो गई है, तो वो क्या करता है कि रिलीजन के खिलाफ हो जाता है और बहुत ही ज्यादा लॉजिक से बातें कर रहा है। यानी कि मिसाल के तौर पर सूडो इंटेलेक्चुअल। हाँ, कि यार सिर्फ दुआ मांगने से नहीं होता, करने से होता है काम। भाई ये क्या कर रहे हो, इस तरह की मतलब गवर्नमेंट के भी अगेंस्ट बातें करेगा। और उसकी जो प्राइड है ना अपने नॉलेज और एबिलिटी टू डू थिंग्स में, वो बहुत है। अगर वो कोई चीज़ उसको नहीं पता और वो कुछ नहीं कर सका तो उसकी प्राइड हर्ट होती है। जजमेंट उसकी अभी भी बहुत हाई है, अपने से नीचे स्टेज वालों को बहुत ज़्यादा वो जज करता है। उसके बाद छठे नंबर पे आ गया आपका अचीवर। अचीवर पे आके वो इतना इवॉल्व अच्छा, अभी तक जितनी भी स्टेजेस हैं उसमें बंदा जो है अपनी गलती नहीं मानता, हमेशा दूसरे पे अपनी डाल देता है, ब्लेम और कंप्लेन बहुत आई है। ठीक ठीक। अब छठे स्टेज में अचीवर। अचीवर में आगे उसको रियलाइजेशन हो गई है कि मुझे ठीक होना है, मैं ठीक हूँगा तो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो डेल कार्नेगी, टोनी रॉबिन्स, ये वो इस तरह की जो सेल्फ हेल्प बुक्स, ये 6th स्टेज पे स्टार्ट होती है। ठीक है। तो सेल्फ रियलाइजेशन। और दूसरा उसके अंदर वो इतना इवॉल्व हो गया कि अब उसको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई काला है, गोरा है, मैक्सिकन है, हिंदू है, मुसलमान है, इंडियन है, पाकिस्तानी। ठीक ठीक। वो उससे अबव हो गया और अब वो ग्रोथ और प्रोग्रेस की जो नीड है ना वो उसकी बहुत हाई है। ठीक है ना, मटेरियल चीज़ों की, करियर की, एजुकेशन की। वो 12-12, 14-14 घंटे 7 दिन काम कर रहा है और वो यही सोचता है कि यार बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे। उनके लिए जो उसने अकम्प्लिश नहीं है, उनके लिए उसकी जजमेंट अभी भी हाई है। मुझे लग रहा है। ठीक है, आगे। ठीक है। अच्छा, 7वें स्टेज पे जब वो आता है ना, उसको बोलते हैं प्लूरलिस्ट। अब वो अपना नहीं सोचता, बिजनेस में अभी भी वो बहुत पोजीशन चेक कर रहा हूँ। इट्स सो ब्राइट हियर, ऑस्टिन की गर्मी। अच्छा चलिए, कैरी ऑन कैरी ऑन। तो लेकिन वो हमेशा सोचता है कि उसके किसी बात से या किसी एक्शन से बाकी लोगों को, उसको एम्प्लॉयज को, एनवायरनमेंट को क्या अफेक्ट होगा, राइट। ठीक है। और उसकी जजमेंट अब लो है और नेगेटिव इमोशंस लो है। और अब वो स्पिरिचुअल होना शुरू हो गया है। उसका नेगेटिव इमोशंस क्योंकि लो है, तो उसका जो कनेक्शन है ना सोर्स से, गॉड से, वो उस्तवार होना शुरू हो गया। क्योंकि नेगेटिव इमोशंस होते हैं तो कनेक्शन नहीं हो सकता। अब जब वो रिलीजियस होगा ना, या अगर पहले से ही रिलीजियस है, तो अब वो वाकई रिलीजियस होगा दिल से और वो सारी चीज़ों को फॉलो करेगा और उसके अंदर एम्पैथी है, सिंपैथी है। ठीक है। इस स्टेज पे आके ना अल्लाह की मदद आना शुरू हो। जैसे हम बोलते हैं ना कि अल्लाह की मदद आ गई, अल्लाह की ठीक है। बरकत आ गई, रहमत आ गई। ठीक है। अच्छा, अब ये होता है कि मिसाल के तौर पर इस टाइम पे आके ना, इसको साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ऑन हो जाता है। क्या ऑन हो जाता है? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये बेसिकली एक न्यूरल नेटवर्क है। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक गाड़ी ली, आपको लगता है कोई नहीं चलाता, राइट। आपने जब ले ली तो अब आपको हर जगह नजर आ रही है। हाँ ये हाँ, आपने नोट किया? बिल्कुल ऐसे ही होता है। ठीक है। तो मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि मेरा एक दोस्त था जुल्फकार भट्ट, उसने मुझे कहा कि यार कोई बिजनेस बताओ। 2006 में न्यूयॉर्क में था वो। तो मैंने उसको चेक कैशिंग का बिजनेस बताया और समझाया कि कैसे होता है, क्या होता है, स्टार्ट कैसे करना। तो उसने मुझे कहा कि यार न्यूयॉर्क में उसने देखा नहीं कभी। तो मैंने कहा ठीक है। 2 दिन बाद उसकी कॉल आई कि यार वो जहाँ भी जाता है ना, उसको वही 150 का कैशिंग का साइन नजर आ रहा है। ठीक है। यानी कि साइंस पहले भी थे, उसको नजर नहीं आ रहे थे। या साइंस, या ट्रू। तो इसी तरह साइन एंड अपॉर्चुनिटी एंड चांसेस टू बी हैप्पी, टू बी फुलफिल्ड, to be fit and healthy and enjoy the love, connection, bonding with people, and God is there to prosper and thrive in your business and career and have abundance of money. साइंस है, चांसेस हैं, लेकिन किसी को नजर आ रहे हैं, किसी को नहीं आ रहे नजर। मिसाल के तौर पे लाहौर में अपॉर्चुनिटी तो सबके लिए बराबर ही है ना, लेकिन कोई थ्राइव कर जाता है, कोई नहीं कर सकता। नहीं करता। तो इसमें लेकिन कईयों की बीवियां उनके लिए लक भी होती हैं, लकी होती हैं, यू नो, कईयों की बीवियां। तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है 8वें नंबर पे जब वो आता है ना, तो उसका गिविंग की नीड बहुत हाई हो गई है। ठीक है। यू नो, अब उसमें
जो बड़ी बड़ी लोग चैरिटीज करते हैं जैसे बिल गेट्स वगैरह इस तरह के लोग हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है। तो अब उसकी जजमेंट खत्म होगी, जैसे हमने पहले कहा था कि यार वो people do their best according to their mental emotional state and their biochemical state True. and according to their education experiences and exposure, right, and environment. तो वो इस तरह बंदों को जज नहीं करता, उसकी जजमेंट खत्म होगी, ठीक है। ठीक है ना। और उसकी गिविंग की नीड बहुत हाई है, ग्रोथ की नीड अब कम हो गई और गिविंग की नीड हाई है। अच्छा, जब 7th स्टेज पे आता है ना तो उसकी जो मटेरियल चीज़ों की नीड है, यानी पैसे, स्पोर्ट्स कार और पार्टी शार्टी, ये चीज़ें उसकी कम होना शुरू हो जाए, 8th पे और कम हो गई। अच्छा, वो जब 9th पे आता है ना तो उसकी ग्रोथ की नीड भी खत्म हो जाती है, सिर्फ गिविंग की नीड रह जाती है। और अब उसकी जो है ना वाकई वो स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंच चुका है, 7th से स्टार्ट हुआ है, अब वाकई स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंच चुका है और उसका कनेक्शन जो है गॉड के उसमें साथ। एग्जांपल दें, 9th पे कौन है 9th में मेरे मिसाल के अलावा? अब्दुल सत्तार ईदी टाइप के लोग, जैसे जो कि उन्होंने इतनी बड़ी एम्बुलेंस की फ्लीट्स बनाई, ऑर्फनेजेस बनाए, अपने लिए कुछ नहीं किया। मदर टेरेसा हो गई, या बाबा बुल्ले शाह हो गया, इस तरह के लोग हैं, यू नो, ओके, जिनको वर्ल्डली डिजायर कोई नहीं थी, आई गेट इट। ठीक है ना। अब वो उस लेवल पे पहुंचना तो वो लाखों में एक दो लोग होते हैं। तो बेसिकली जो आपकी इनोवेशन और क्रिएटिविटी स्टार्ट होती है ना, वो स्टार्ट होती है 6 से। 6 तो अचीवर है। हाँ, 6 तो अचीवर है, वहां से स्टार्ट होती है। अब मसला ये है कि जैसे हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनमें नेगेटिव इमोशंस बहुत हाई हैं, मेजॉरिटी लोग 3, 4 और 5 पे हैं, 6 में बहुत ही कम लोग हैं, और उससे ऊपर तो और भी कम है। तो इसीलिए हमारे यहाँ ना डेवलपमेंट उस तरह हो नहीं सकी। हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि यार हम इसको अचीव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आईफोन बना अमेरिका में बना, आपका गूगल बनी अमेरिका में बनी, ठीक है, बोइंग जहाज बना यहाँ बना, अमेजोन, बहुत बहुत सारी इनोवेशन है। तो गलती से नहीं बनी ये, हमारी कंट्रीज में भी कहीं बन सकती थी, हमारे किसी शहर में भी बन सकती थी, गलती से नहीं हुआ, ये किसी वजह से हुआ है, ठीक है ना। अब बात यह है कि अगर हम भी इन प्रिंसिपल्स को पे चलें और अपने अंदर इनोवेशन क्रिएटिविटी पैदा करने के लिए या डेवलप होने के लिए एज एन इंडिविजुअल अगर इवॉल्व करें, अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी लाएं, तो चीज़ें बेहतर होंगी एज एन इंडिविजुअल और एज एन नेशन। मुझे तो इसका एक ही हल नजर आता है कि मैं लंगोट पहन के जंगलों में भाग जाऊं। नहीं, वो तो बहुत दूर है यार, मतलब उस लेवल तक तो पहुंचने के लिए वो you बुधा बुधा के लेवल है वो तो। हाँ, नहीं, but these are very good, principles and concepts, but I think they're a little too complicated for an average person to absorb. या एक काम करते हैं ना, आप इस पे एक सर्वे लें, जिन लोगों ने सुना है पूरा, मेरा ख्याल है अभी कितने लोग होंगे ऑडियंस? People have been coming and going, so मैं लगा दूंगा सर्वे। हाँ, अगर आप एक सर्वे ले लेना कि कितने लोगों को समझ आई है ये बात, क्योंकि जो मेरे दोस्त वगैरह करीब लोग, उनसे तो मैं ये बात करता ही रहता हूँ और काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ और अब मैं खुद इवॉल्व होकर ये पूरी चीज़ को समझाऊँ, तो उनको तो शायद समझ आ रही होगी। लेकिन जो बंदा पहली बार सुन रहा है और उसको मतलब वो शायद समझ आ गई, लेकिन वो इस बात को मान भी सकता है या नहीं मान सकता। ये दो लेवल है ना, मतलब पहले तो एक तो समझ आए, जो कि मेरा ख्याल है कि समझ तो आ जाएगी हर किसी को, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट भी करता है कि नहीं। ठीक ठीक। ठीक है सर, तो Just a sec. So, we're gonna sum it up. Rizwan bhai discussed the the importance of positivity and self-appraisal in every sphere of our life. Chahe it's marriage, it's your business, it's you're dealing with people around you, your colleagues, and everything. And जो मैंने चीज से समझी है कि you should not judge people, and you should realize कि अगर somebody, you should try to see things from other people's perspective. कि if somebody is doing or acting in a certain way, there is something that is pushing them to behave that way, and you have to understand the reason behind that. Instead of being reactive, you become proactive. Or I think अच्छा, try एक to चीज मैं ऐड realize करना life चाहता is हूँ, short. सॉरी आपको इंटरप्ट कर दिया मैंने। जी एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि जो हायर स्टेजेस वाले लोग हैं ना, मिसाल के तौर पे अगर 8th स्टेज पे बंदा है, जैसे मैंने कहा वो जज नहीं करता, वो इस तरह भी सोचेगा कि यार अगर एक बंदा 7th ग्रेड में है, सॉरी 12th ग्रेड में अलजबरा कर रहा है,
7th ग्रेड का बच्चा आता है, उसको वो नहीं आती 12th ग्रेड की, तो उसको जज नहीं करेगा, वो तो यार ये तो अभी 7वीं क्लास में है। तो इसी तरह वो उसको नजर आ रहा है, उसको नीचे वाली स्टेजेस की पूरी साइकोलॉजी और बिहेवियर समझ आ रही है कि लेकिन ये कर नीचे क्यों वाले रहा जो है, देर ब्लाइंड, वो उनका है। मेंटल नीचे वाले को ऊपर वाले की नहीं समझ आ रही, वो कह रहे इसने इतनी चैरिटी क्यों दे दी यार, ये तो इसने क्यों कर दिया, इसका क्या फायदा, इसको टैक्स में कोई ब्रेक मिला होगा, ठीक है ना। या आपने ये कहते लोगों को सुना यार, हर कोई झूठ बोलता है फायदे के लिए, हर कोई फायदे के लिए करता है किसी, इस तरह की। हालांकि बहुत सारे लोग सेल्फलेस हैं। बहुत लोग हैं, उनका नंबर कम है। चलें, we'll sum it up. Thank you so much, Rizwan bhai, for your precious time, and we'll Thank you. keep bugging you so that we can learn from you and try to improve our life, relationship, contentment, and well-being. Thank you, Because sir. everything else is transitory and fleet. It is the impression that we leave in this world behind us that is more important. Yeah, that's Okay, ji. Thank you, guys. Hope okay, you. sir. Thank you, ji. Thank Thank you. you. Thank you very much for having me. All right. Everybody have a good day. Take care. Bye. Thank you.